been left, but I will not get into detail of that. What is asset allocation? How to do asset allocation? We are going to study this. I will have a humble request if you all can have a pen and paper with you, or diary and a pen. If you can note the important things, it will be good for you. It will help you in future. Okay, now let's start. I'm not going to these introductory slides. I'm leaving this. These are the very introductory slides about me whenever I go to. Now, what happens? What is the basic requirement of a human being? Health, wealth, and happiness. If we have these three things in life, we can do anything. Our health should be good. We should have enough wealth, and we should have happiness in the life. We should have happiness in the life. If we do not have happiness in the life, health and wealth is of no use. What I assume, first we should have health, good health, then we should work for the wealth. And generally, if we have good health and wealth, and family members, we do not have any problem with the family members, then we have happiness also. So whenever we are taking any decision, the first thing in our mind should be, is it not going to affect my health? If any one of you is working in a stress environment which is increasing your BP, sugar, please, my humble request, go tomorrow, put your papers, leave the job, go to Himalaya, enjoy your life. Do not work if you are earning and losing your health. Never do that job. Better not to work, because whatever you will be earning today, you will be spending the same money for your health after 10 years, 15 years, 20 years. That is going to happen. That is going to happen. So why to earn that money? Never waste your time for that money. Now, since our session is all about asset allocation, we should be knowing which are the assets. वो कौन से asset है जहां हम पैसे लगाते हैं और लगाना चाहिए. Generally, हमारे पास 4 तरह के asset होते हैं. These are 4 types of asset. I will use both the language English and Hindi. 4 types of assets we generally use to invest our money. I told you that everybody that in India we know how to earn. Generally we put बहुत काम करते हैं हम सुबह से शाम तक. कुछ टीचर्स ही, since you all are teachers, तो आप लोग सैलरी के लिए काम करते हैं, then ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कुछ लोग पार्ट टाइम वर्क करते हैं. Everybody work a lot कि हमें पैसा कहाँ से कमाना. Then we work कि हमें पैसा कैसे सेव करना. हम करते हैं, हम बहुत सारी अपनी हैप्पीनेस सेक्रीफाइस करते हैं और हम सेव करते हैं. कपड़े पहनने हो, टूर पे जाना हो, कुछ भी ऐसी चीजें होते हैं. जनरली वी ट्राई टू रिड्यूस वी सेव. बट आफ्टर दिस एक स्टेप हमसे रह जाता है, दैट इज द प्रॉपर एसेट एलोकेशन. जनरली हम अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं? एफडी में डाल देते हैं, पीपीएफ में डाल देते हैं. जनरली हम ऐसा करते हैं. कुछ नहीं तो कोई पड़ोसी आता है या कोई मामा चाचा आता है, कहता है ये एलआईसी की पॉलिसी खरीद लो, हम खरीद लेते हैं. जनरली हम इंडिया से ही करते हैं. मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई पॉलिसी नहीं खरीदी एक्सेप्ट अ टर्म पॉलिसी एंड मेडिकल पॉलिसी. ये जो जीवन आनंद, जीवन श्री एंड ऑल दोस थिंग, जितने भी ये श्रेय है ना, रिटायरमेंट, चाइल्ड प्लान, ये सब वेस्टेज ऑफ मनी, सब वेस्टेज ऑफ मनी है. नेवर बाय ऑल दोस थिंग. इन पॉलिसीज में केवल 2 लोग अर्न करने हैं. एक वो जो कि एजेंट जिसने आपको बेचा, दूसरी वो कंपनी जिसका वो प्रोडक्ट है. ह्यूमन बीइंग, जनरल पर्सन जब इंश्योर्ड होता है इन प्रोडक्ट्स में, उसको 5 से 6% की रिटर्न मिलती है, which you can get into FDs of 5 years. Why to waste? Why to buy insurance? I don't know. Insurance product, this endowment type of product, I know. मैं तो करता हूँ. ठीक है. Now, first thing where you have to invest is FRI, fixed rate interest instruments. जो fixed rate वाले कौन से होते हैं? I will go into detail of that. Second is gold. Third is property. And fourth is equity. Generally ये 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं. रिपीट कर रहा हूं, फिक्स रेट,
gold, property and equity. Okay, now if I go to fixed rate, जनरली हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? पीपीएफ अकाउंट्स खोलते हैं. वी नो 15 ईयर्स का एक अकाउंट होता है जिसमें हम 1,50,000 तक डाल सकते हैं. उसके ऊपर हमें 6-7% के आसपास का इंटरेस्ट मिलता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, एकदम सिक्योर होता है, नो डाउट. सुकन्या समृद्धि, इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड ऑफ लेस देन 10 years, आप उसके लिए ओपन कर सकते हैं. देन वी हैव किसान विकास पत्र विद द पोस्ट ऑफिस. वी हैव गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वी हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स. तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स है जहां हमें एक फिक्स रेट मिलता है, जो भी गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम जनरली इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्या हमें इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए. दिक्कत कहाँ है कि हमें सारी अपनी जो सेविंग्स है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते. हमें क्या हमें पीपीएफ अकाउंट नहीं खोलना चाहिए? खोलना चाहिए. लेकिन अगर हमारी महीने की 10,000 की सेविंग है, जनरली मैं पूछता हूँ आप क्या करते हो? सर पीपीएफ में डाल देते. 1.5 लाख रुपए बचते हैं साल में, 2 लाख बचते हैं, उसमें से 1.5 लाख पीपीएफ में डाल देते. दैट इज रॉन्ग. ओपनिंग पीपीएफ अकाउंट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन सारी सेविंग्स को पीपीएफ में डालना इज रॉन्ग. कितना डालना चाहिए, कहां डालना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. देखते हैं जितना हम कर सकते हैं. नेक्स्ट, गोल्ड. सेकंड इज गोल्ड. गोल्ड में क्या क्या आता है? ज्वेलरीज आती है हमारी, कॉइन्स, ब्रिक्स, बार्स, गोल्ड ETF एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. जनरली इफ वी हैव लेडी टीचर्स विद अस, वो अपने हस्बैंड के साथ जाएंगे, कोई झुमके या कोई गहने खरीद लेंगे और फिर कहेंगे हमने तो इन्वेस्ट कर दिया. नो, दो झुमकास. माय स्लाइड्स आर चेंजिंग और नॉट? प्लीज टेल मी. मोहिनी शर्मा मैम, माय स्लाइड्स आर चेंजिंग? If you, yes, thank you very much. Thank you very much. So generally, if you go, should you buy jewelry or not? This jewelry is for your happiness. As you buy your clothes, as you buy vegetables, as you buy sofa at your home, you should be buying jewelry. But never buy a jewelry and think मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी. ये गलती हम करते हैं. जनरली हमारे पास सेविंग होती है, गए हमने हार खरीद लिया, कह दिया कि हाँ जी हमने तो इन्वेस्ट कर दिया. नो, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि जिस दिन आपने 2 लाख का एक हार खरीद लिया, उसी दिन आपने उसकी वैल्यू 30%, 25% कम हो गई उसी दिन. तो क्या मैं अपनी वाइफ के लिए हार नहीं खरीदता, या झुमके नहीं खरीदता, या पायल नहीं खरीदते? बट दैट शुड बी, द झुमका, द पायल शुड बी पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन. दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. कभी भी आप जैसे आप अपने कपड़े खरीदते हैं, शूज खरीदते हैं, सोफा खरीदते हैं, वह कार खरीदते हैं, वैसे आप खरीदिए ज्वेलरी. बट ज्वेलरी इज नॉट इन्वेस्टमेंट. अगर आपको इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, द प्रोडक्ट, द ओनली प्रोडक्ट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. आई एम रिपीटिंग, आई थिंक टुडे इज द लास्ट डे. शायद अभी जो ओपन आया है, साल में 4 बार आता है, 4 दिन के लिए आता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है. आपको कोई भी एजेंट आपको बेचेगा नहीं. क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं मिलता. आई एम रिपीटिंग, जब आपको कोई भी एजेंट आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचेगा क्योंकि उसको कोई कमीशन नहीं मिलता. आपके पास जब आप बैंक जाते हैं, आपके अकाउंट में पैसे होते हैं, तो बैंक वाला आपको बैठा लेता है, कहता है ये FD कर दो, ये प्लान ले लो. वो कौन से प्लान बेचता है आपको? वो बेचते हैं जिसमें उनको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है. दे विल ऑलवेज टेल यू दोज प्लान. They will never, no bank person will come to you or call you to buy sovereign gold bond, because they are not getting any commission on that. Sovereign gold bond is government of India product. क्या होता है sovereign gold bond? इसको समझिए. सपोज मुझे आज गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, मैं जाके 50,000 रुपए है, सपोज 10 ग्राम का कॉइन खरीद लेता हूँ, या 10 ग्राम का जो भी कोई बार खरीद लेता हूँ या ETF खरीदता हूँ. अब क्या होगा? सपोज मैंने एक कॉइन खरीद लिया, उसको मैंने रखा. अब मेरे पास क्या क्या रिस्क है? पहली बात, उस पर मेकिंग चार्ज रहेगा. दूसरा, उस पर GST रहेगा. तीसरा, मुझे उसे संभाल के रखना है. फिर मैं आज के 10 साल बाद, 8 साल बाद उसको बेचूंगा, तो जो उस समय गोल्ड का रेट होगा वो मुझे मिल जाएगा. लेकिन मेरे को लॉस क्या हुआ? आई हैव टू पे GST, आई हैव टू पे मेकिंग चार्ज, एंड मुझे उसको संभाल के रखना है. ऑन द अदर हैंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है कि आपको 50,000 का गोल्ड खरीदना है, आप मुझे 50,000 दे दो और मैं आपको एक बॉन्ड दे दूंगा. आई विल गिव यू अ बॉन्ड कॉल्ड एज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कि आपने 50,000 का गोल्ड है ये आपके पास.
नाउ आज के 8 साल बाद, 8 साल के उसके मेच्योरिटी होते हैं, 8 साल के बाद आप वो बॉन्ड मुझे वापस कर देना, और जो उस समय गोल्ड का रेट होगा वो मुझसे ले लेना। बस आपने गोल्ड नहीं रखा, उसकी जगह एक कागज रखा जिस पर लिखा हुआ है कितना गोल्ड आपके पास। लेकिन इससे फायदे क्या क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? फर्स्ट, आपका जीएसटी बच गया। सेकंड आपका उसके ऊपर मेकिंग चार्ज बच गया। थर्ड, आपको उसको संभाल के रखना, चोरी नहीं होगा, आपको लॉकर का रेंट नहीं देना। एंड फोर्थ, कि आज अगर आपने 50,000 का खरीदा और 8 साल बाद उसको 80,000 का बेच रहे हैं, 90,000 का बेच रहे हैं, तो जो प्राइस बढ़ गया उस पर कोई टैक्स नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ज्वेलरी या कॉइन ले लेता हूं, उसको मैं बेचता हूं, तो उस पर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। जीएसटी बचा, मेकिंग चार्ज बचा, लॉकर का रेंट बच गया, चोरी नहीं होगा, और मेरा टैक्स भी बच गया। बियॉन्ड दिस, इसके सिवा भी एक फायदा है। क्या फायदा है? व्हाट इज द नेक्स्ट बेनिफिट? फायदा ये है कि जब आप गवर्नमेंट का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद के रखते हैं, तो आपको उस पे 2.5% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी मोहिनी शर्मा जी ने, राधा मित्तल जी ने गोल्ड का कॉइन खरीदा, ऑन द अदर हैंड सुनील त्रिपाठी ने बॉन्ड खरीद लिया। 8 साल के बाद मोहिनी शर्मा जी अपना कॉइन बेचेंगी, 50 वाला उनको 80 मिल गया, सपोज मान लो। मैं भी अपना बॉन्ड बेचूंगा, मुझे 80 मिल गया। लेकिन इस 8 साल में मुझे 20% इंटरेस्ट भी मिला, 2.5% पर। तो मोहिनी शर्मा जी से मुझे फायदा हुआ। मोहिनी शर्मा जी ने 50 का खरीद के 80 में बेचा, तो उनको टैक्स लग गया, मुझे टैक्स लगा ही नहीं। मोहिनी शर्मा जी को 8 साल तक टेंशन थी कि इसको संभाल के कहां रखूं। क्यों? क्योंकि गोल्ड है, कभी भी चोरी हो सकता है। मुझे फाइल में कहीं पेपर पड़ा हुआ है, या आजकल तो डीमेट में आता है, डीमेट में पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना अच्छा है। लेकिन nobody will tell you about this product. Why? Because there is no commission. आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला आपसे नहीं कहेगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदो। वो क्या कहेगा? सर ये पॉलिसी आई है, ये ले लो, इसमें बड़ा अच्छा फायदा है। बिकॉज दे गेट कमीशन, दे हैव टारगेट्स। तो प्लीज, whenever you have to invest in gold, invest in gold. You have to buy jewelry, that is your happiness, you should be buying. I am not against of that, because ladies ने बहुत सारे ज्वाइन किया, मेरे को आप लोग विरोध कर देंगे मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो but whenever you have to invest, please invest by using sovereign gold bond. साल में 4 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, 4-5 बार, 4-5 दिन के लिए खुलता है। अभी जो खुला हुआ है उसका अभी आई थिंक आज या कल लास्ट डेट होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 51 समथिंग उसका रेट है, 50 रुपीज का। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलता है। यू शुड बी बाइंग, बट उसमें आपको एफर्ट खुद करना पड़ेगा। आपके घर कोई आके एजेंट नहीं बेचेगा, बिकॉज उसको कमीशन नहीं मिलता। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ दिस इज अबाउट द गोल्ड। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर आपने बोला है कि जो सोवरेन गोल्ड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका कोई मिनिमम अमाउंट भी होता है क्या? मैम, एक यूनिट लेनी होती है। 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम यानी जो भी रेट, जैसे आज इस समय 5,100 के आसपास चल रहा है, या 5,000 का चल रहा है, तो वो मतलब जब आप इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं जब आपके पास 5,000 रुपए है, उससे कम नहीं कर सकते। 1 ग्राम आपको मिनिमम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नाउ प्रॉपर्टी, जनरली हम इंडियंस, खासकर जो एनसीआर वगैरह में, टाउन्स में रहते हैं, जनरली वे इन्वेस्ट इनटू फ्लैट्स। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। आपको रहना है, रहने के लिए आपके पास घर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, बट नेवर इन्वेस्ट इनटू फ्लैट्स। आप कोई भी देखो क्या होगा, आपको एक एग्जांपल दे दोगे कि मैंने यहाँ 1,500 खरीदा था 1 करोड़ का, वो 3 करोड़ का हो गया, वो हो गया ना, क्योंकि पिछले 20 साल में आप अब फ्लैट खरीदा था, आप तो उसको बेचोगे नहीं, आप उसको 25 साल रखोगे, 50 साल रखोगे। एनी 50 ईयर, टेक एनी 50 ईयर का ड्यूरेशन, any duration of 50 year, 40 year, you will have the minimum return into flats, commercial space. Never buy that, because these are depleting assets. इनमें क्या होता है, जब आप खरीदते हैं तो आप जिस बिल्डिंग का, जिसका पैसा देते हैं, वो डिप्लीटिंग है, सीमेंट है, सरिया है, ये these are depleting assets. उसकी एक लाइफ है 50 साल, 60 साल, 65 साल, उसकी लाइफ है।
वो खत्म होना ही होना। उसके बाद आपको दोबारा लगा के उसी जगह पे बनाना पड़ेगा, या आपको लैंड का एक पोर्शन मिल जाता है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, दैट इज। तो नेवर बाय फ्लैट्स, कमर्शियल स्पेस फॉर योर इन्वेस्टमेंट। रहने के लिए लेना है, आप अपना घर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है रनिंग में डॉक्टर त्रिपाठी, आप उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने उस पर कुछ कर रखा है। आपको रहने के लिए भी घर लेना है तो कैसे लेना है? आज आप सैलरी कमाना शुरू करते हैं, 20 साल तक आप इन्वेस्ट करिए, 20 साल बाद जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप घर खरीदे। लोग क्या करते हैं, आज घर खरीदते हैं और 20 साल तक उसकी ईएमआई देते हैं। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, सपोज मैं गुड़गांव के एक सोसाइटी में रहता हूं, इस सोसाइटी में एक फ्लैट आता है 1.5 करोड़ रुपए का और यहाँ पे रेंट है 35,000 रुपए। ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता रहा हूं, रेंट इज 35,000 रुपीज, मेंटेनेंस तो मैं अपना घर हो तो भी देना है और अगर मैंने रेंट पे लिया तो भी देना है, तो आई एम लीविंग द मेंटेनेंस असाइड। नाउ रेंट इज 35,000 रुपीज, हाउस इज ऑफ 1.5 CM। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं रेंट पे रहूं, दूसरा मैं घर खरीद लूं। अगर मैं घर खरीदता हूं तो करीब 25, 30, 40 लाख रुपए मुझे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस मुझे ईएमआई बनेगी कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की, कम से कम, दिस इज द मिनिमम। अब मैं क्या करूं, और 20 साल के बाद देखिए क्या होगा, मैं रेंट पे रहूं, 1 लाख रुपए मंथ की जो ईएमआई है उसमें से मैं 35,000 रेंट दे दूं, जो 65,000 रुपीज है उसको मैं इन्वेस्ट करता जाऊं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इन्वेस्ट करता जाऊं। 20 साल के बाद आई विल एबल टू बाई 2 flats in the same society with the increased price after 2 years, and this calculation is available on my YouTube channel, or you can Google it, buy or rent. You will get the answer. This is not explained by Sunil Tripathi, these are explained by any financial expert. मैं फिर बता रहा हूं, आज घर खरीद के 20 साल तक रेंट ईएमआई देना, ऑन द अदर हैंड उसी घर में उसी सोसाइटी में 20 साल तक रहना रेंट पे, और फिर बचे हुए पैसे से जो आपका डाउन पेमेंट का पैसा था उसको सही जगह इन्वेस्ट किया, और जो आपकी बची हुई ईएमआई का पैसा उसको अच्छी एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट किया, तो आप उस समय यू विल एबल टू बाय मिनिमम 2 हाउस, और उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन हम करते नहीं। दैट इज द रीजन आई कीप दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन। प्लीज व्हेनेवर यू टेक द, आपने कभी सुना है एसबीआई को अपना ब्रांच खोलना होता है? सोचिए, आप अपने एरिया में देखिए, एसबीआई को, पीएनबी को, एक्सिस बैंक को, ऐसे बैंक को, या किसी कंपनियों को, गूगल को अपना ब्रांच खोलना होता है, वो घर खरीदते नहीं, वो रेंट पे लेते हैं। क्या जिसने एसबीआई ने कहीं ब्रांच खोल दिया 50 साल तक रहेगा, वो 50 साल तक रहेगा, क्योंकि जब आप उन्होंने कैलकुलेशन की है, इट इज ऑलवेज चीपर टू बी ऑन रेंट। लेकिन नो डाउट हमारा एक इमोशंस होता है, हमें घर होना चाहिए। तो कब होना चाहिए घर? आपको तभी खरीदना है जब आपके पास अपने पैसे हो जाएं। नेवर बाय अ हाउस ऑन रेंट, एंड द एग्जांपल व्हिच आई एम कोटिंग इज कोटिंग आफ्टर डिडक्टिंग योर टैक्स बेनिफिट एवरीथिंग, सब कुछ डिडक्ट करने के बाद बता रहा हूं, यू विल एबल टू बाय 2 हाउस, and even after that you will be having some surplus money. बस वो इमोशंस है कि आप जल्दी से कह सकते हैं अपने पड़ोसियों को कि ये मेरा अपना घर है, बस इतना ही हो। इमोशंस को देखिए, इमोशंस डू नॉट हैव एनी वैल्यू, इमोशंस का तो कोई वैल्यू होता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, first we talked about FRIs, then we talked about gold, then we talked about property. प्रॉपर्टी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना चाहिए? प्लीज माय रिकमेंडेशन, ऑलवेज बाय लैंड। लैंड्स, प्लॉट्स जो होते हैं, जो अथॉरिटी, जैसे गुड़गांव में मैं रहता हूँ, यहाँ हुडा प्लॉट काटती है। अगर आप जयपुर में चले जाएंगे तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अगर आप चले जाएंगे लखनऊ में तो वहां आवास विकास परिषद है। तो इफ दे आर ऑक्शनिंग लैंड और वो
करते हैं, फॉर्म निकालते हैं, अगर वो मिलता है तो यू शुड बी इन्वेस्टिंग इनटू दैट. दैट इज द गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज लैंड डिप्लीटिंग एसेट्स नहीं होता. जो फ्लैट्स होते हैं दो ज्यादा डिप्लीटिंग एसेट्स, उसमें आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. लैंड इज ऑलवेज अप्रिसिएटिंग एसेट. आपको वो भी ऐसे नहीं कि कोई कच्ची कच्ची लैंड काट रहे हैं उसकी, मैं आई नेवर, बिकॉज वी आर द जनरल सर्विस क्लास पीपल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू उसको संभाल के रखना. तो हमें लैंड में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज लैंड के एक लिमिट है, लैंड कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड, उसको आप नहीं बढ़ा सकते, जो है वो है. तो ऑलवेज. नाउ इक्विटी. इक्विटी मींस ओनरशिप. किसी भी बिजनेस के ओनरशिप लेने को वी कॉल एज इक्विटी. नाउ देयर आर 4 ways टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी. वन इज आप म्यूचुअल फंड जनरली आप लोग करते होंगे, अच्छे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए. आई विल गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. सेकंड, you buy shares. If you have knowledge, you can buy shares of good companies. Third, you can invest into unlisted companies. There are many, वो generally हम आप को नहीं करना चाहिए. And fourth is start your own venture. अगर आप अपनी एक शॉप जैसे chaiwala.com या समथिंग zomato.com, उन्होंने अपना पैसा लगा दिया, तो that is also equity. अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, that is also. आप अब इसमें तरीके क्या है? सिंपल सी बात है, किसी बिजनेस की ओनरशिप को लेने को वी कॉल एज इक्विटी. अब मैंने खुद बिजनेस शुरू किया, दैट इज मेरा इक्विटी है. या मैंने देखा टाटा बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैंने कहा भाई मैं भी अपना कुछ पैसा लगा लेता हूँ. रिलायंस बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, मैंने कहा मैं भी अपना कुछ पैसा लगाता हूँ, दैट इज इक्विटी. मुझे ये पता ही नहीं कौन अच्छा बिजनेस कर रहा है, मुझे नहीं पता कि कौन है. मुझे पता है टाटा भी कर रहा है, बिरला भी कर रहा है, रिलायंस भी कर रहा है. तो मैंने क्या किया, राधा मित्तल जी को देखा कि सी डू हैव नॉलेज, तो मैंने राधा मित्तल जी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट कर दिया और मैंने कहा कि आप मेरे लिए कुछ कंपनियों के शेयर खरीदो या कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट करो. दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड होता क्या कि मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, तो जो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है, जिसे हम कहते हैं कि जो एसेट को हमारी मैनेज करता है, हम सब लोग अपना पैसा उसको दे देते हैं और वो एनालिसिस करता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, उसमें इन्वेस्ट कर देता है. अपनी फीस काटता है, कंपनी की चार्जेस काटता है, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, और उसके बाद हमें पैसा लौटा देता है. तो इफ वी हैव टाइम वी कैन ओपन आवर ओन बिजनेस. इफ यू डू नॉट हैव टाइम वी कैन एनालाइज द बिजनेस ऑफ अदर पर्सन, टाटा का, बिरला का, रिलायंस का, बाटा का, वीआईपी का, जिसका वी कैन इन्वेस्ट इनटू दोज बिजनेस. एंड अगर हमें ये भी नहीं पता कि हम दूसरे के बिजनेस एनालिसिस नहीं कर सकते, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सर्च फॉर अ पर्सन जिसको थोड़ी नॉलेज है. दैट इज मैं कर रहा हूं फंड मैनेजर. अच्छे फंड मैनेजर को ढूंढ के अच्छे फंड्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फंड रूट, और उसके थ्रू भी हम इक्विटी को एक्वायर करते हैं. दिस इज द वेरी लेमन लैंग्वेज एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू इन्वेस्ट इनटू इक्विटी. नाउ जो हम इक्विटी मार्केट की एंट्री की बात करते हैं, इट इज लाइक दैट कि सपोज आई एम इन गुड़गांव, मुझे दिल्ली जाना है. अब दिल्ली जाने का 2 वे. एक, अगर मुझे ड्राइविंग आती है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा और दिल्ली पहुंच जाऊंगा. अब मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैं कोई बस हायर करूंगा, मैं उसमें पहुंच जाऊंगा, और जो बस का ड्राइवर, कंपनी, कंडक्टर, जो भी काम कहते हैं, उसकी जो फीस होगी उसको मैं दे दूंगा. दिल्ली तो मुझे दोनों केस में पहुंचना, आई हैव टू रीच दिल्ली. तो आई एम रीचिंग दिल्ली बाय ईदर बाय ड्राइविंग माई सेल्फ और बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अ ड्राइवर. सेम वे इक्विटी होता है कि अगर मैंने खुद कंपनी के शेयर खरीद लिए तो शेयर बाय करना, और नहीं खरीद पा रहा हूं तो मैं एक बस में बैठ गया जहां उसमें सब लोग दिल्ली जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे. क्या हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए या स्टॉक के थ्रू जाना चाहिए, डिपेंड करता है मेरी नॉलेज, मेरा टाइम, मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे. मैं हमेशा कहता हूं कि हर चीज की नॉलेज आपको नहीं हो सकती. जैसे मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मेरा बेटा फिजिक्स लेगा तो मैं फिजिक्स के एक टीचर को ढूंढूंगा, कहूंगा इसको ट्यूशन पढ़ा दो. सेम वे कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई टैक्सेशन का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई करियर का एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है. हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए इन एवरी फील्ड, और जो उनकी फीस है वो देना चाहिए. मैं आपको बताता हूँ, गिविंग फीस एंड टेकिंग द एक्सपर्ट नॉलेज इज ऑलवेज चीपर. लेकिन हम इंडिया में इस चीज में बिलीव ही नहीं करते. मैं गुड़गांव में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदते हैं, लेकिन एक आर्किटेक्ट 10,000 रुपए मांगता है कि हम आपको अच्छा सा डिजाइन बना के दे देंगे. वो कहते हैं ना ना ना, हम हुड्डा में वो किसी से नक्शा पास करवा देंगे और खुद बना के. जिंदगी भर उस स्पेस को वेस्ट करते हैं, लेकिन 10,000 20,000 रुपए एक अच्छे आर्किटेक्ट को नहीं दे पाते.
मैंने बहुत सारे ऐसे देखे। सेम वे आपके पास फंड्स होता है, आप बैंक में जाते हैं, वहां बैंक में बैठी हुई कोई लेडी होगी, वो बड़े प्यार से आपको समझा देती है कि हाँ ये कर लो वो कर लो, आप कर लेते हैं, आपको लगता है वाह क्या समझाया। वो क्यों समझा रही है आपको, समझो जरा। बैंक में बैठी हुई लेडी या कोई इंश्योरेंस कंपनी बेचने वाला जो है वो आपको क्यों, उससे आपका क्या लेना देना। दे आर मेनली कंसर्न ऑन देयर टारगेट्स एंड ऑन देयर कमीशन, ऑन देयर कमीशन। आपका उससे कोई, आपका वेलफेयर, आपका बेनिफिट, उनका कोई उद्देश्य, कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं। तो प्लीज नेवर इन्वेस्ट योर मनी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ अदर कंपनीज। नेवर इन्वेस्ट योर मनी, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, कभी मत करिए। थोड़ी सी एनालिसिस करिए, एक एक्सपर्ट को हायर करिए, उसको 2-4 हजार रुपए फीस दे दीजिए, आप हमेशा फायदे में रहें। वो 2-4 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप कितने का नुकसान, लोग ऐसी ऐसी पॉलिसीज खरीद लेते हैं, 40 उसके बाद सरेंडर करते हैं, कुछ नहीं मिलता है, 10 साल 20 साल रखते हैं, उसके बाद उनको लगता है मेरा तो 10 लाख का 20 हो गया। अरे 20 साल अगर आपको उसको अच्छे म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आप समझ नहीं सकते हो कितना पैसा हो सकता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप इन चीजों से जो आप सेविंग करने की कोशिश करते हैं छोटे, वो एकदम गलत है। प्लीज आपके एरिया में कोई ना कोई होगा, सेबी से एक्सपीरियंस से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प लीजिए। 1000-2000 ले लेगा, ये तो करेगा। नेक्स्ट, नाउ म्यूचुअल फंड एक बहुत, जब जिसको कुछ ना पता, प्लीज take the help of SIP route of mutual fund. First of all, SIP is not any product. SIP is way to invest into mutual. जनरली लोग कहते हैं मैंने SIP खरीद ली, SIP कुछ नहीं होता। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड जैसे मुझे एक फ्रिज लेना है, मैं गया पैसा दिया फ्रिज लिया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका मैं फ्रिज ले आया, उसका हर महीने EMI दे रहा हूँ या इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, दूसरा तरीका। सेम वे अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है तो मेरे पास इकट्ठे पैसे हैं तो मैं म्यूचुअल फंड खरीदता हूँ, नहीं तो मैं अपने सेविंग में से हर महीने खरीदता रहता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। जनरली जो मेन अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 4 तरह के होते हैं, जिसको हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप कहते हैं। वैसे डेट वेट रिलेटेड भी होते हैं, फॉरेन फंड्स भी होते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल। जनरली लोग कहते हैं सर कैसे इन्वेस्ट करें, कुछ मत करिए, अच्छी कंपनी का एक लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप, मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। क्या करना है, जनरली मैंने पोर्टफोलियो देखा कुछ लोगों का, 4 फंड है, चारों लार्ज कैप नहीं, 4 फंड है उसमें से 3 स्मॉल कैप नहीं। प्लीज डाइवर्सिफाई योर एसेट, डाइवर्सिफाई योर एसेट, एलोकेट योर एसेट इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो एक लार्ज कैप फंड लीजिए, एक मिड कैप फंड लीजिए, एक स्मॉल कैप फंड लीजिए, एक मल्टी कैप लीजिए, या एक ELSS लीजिए। नाउ व्हाट इज दिस ELSS? ELSS is a specific type of large cap fund. I'm repeating, ELSS is specific type of large cap fund जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। जनरली जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 1 साल की लॉक इन होती है कि आपने जो आज पैसा लगाया उसको 1 साल बाद निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो वो उसके ऊपर चार्ज लग जाता है, 1 साल के बाद चार्ज नहीं लगता। ELSS में वो लॉक इन 3 साल का होता है, 3 इयर्स का लॉकिंग होता है। तो उसमें आपको 80C जो आप अपने स्कूल्स में देते होंगे 80C का बेनिफिट मिल जाता है। तो ELSS इज ऑल्सो अ लार्ज कैप फंड बट लॉक इन पीरियड इज 3 इयर्स। तो आप ELSS में कर सकते हैं, इक्विटी रिस्क सेविंग स्कीम। अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा जॉब ज्वाइन किया, जॉब ज्वाइन किए हुए 15 साल हो गया, फिर भी कहते हैं सर 80C में इन्वेस्ट करना है। अरे 15 साल के बाद भी कोई 80C में करता है क्या? आपको 3 साल के बाद कभी 80C में इन्वेस्ट नहीं करना। 80C में जिस दिन आपने जॉब ज्वाइन किया उसके बाद केवल 3 साल इन्वेस्ट करना होता है। 3 साल के बाद आपको 80C में करना ही नहीं होता, लेकिन लोग हर साल करते हैं। हर साल कहते हैं यार कहां से लाएं पैसे, कहां से लाएं, कहां इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। कोई पॉलिसी ले लिया उसका 20 साल तक प्रीमियम दे रहे हैं, क्या, व्हाट इज दिस? क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आप इसको यूज करें। सपोज आप 2024 में जॉब करते हैं, 2024 के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगले मार्च तक 2025 में, 2026 में आप किसी अच्छे ELSS फंड में SIP करेंगे। रिपीट कर रहा हूं, किसी अच्छे ELSS फंड में SIP कीजिए। 2024 में किया, 2025 में किया, 2026 में किया, 3 साल किया। 3 साल तक अपने स्कूल में या अपने अकाउंटेंट को देगा ये हमारा 80C में आप करें।
अब 2024, 25, 26 बाद 2027 में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पैसे सेव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको 80C का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करना है आपको पता है, ईएसएस में 3 साल का लॉक इन होता है। जब 2027 में अप्रैल में आप जाएंगे तो 2022 के 24 के जो अप्रैल में आपने पहला पैसा जमा किया था उसके 3 साल हो चुके हैं। आपको एक फॉर्म भरना अपने फंड मैनेजर के पास, उसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल फॉर्म। जो 24 का अप्रैल का पैसा होगा वो निकलेगा और 27 के अप्रैल में लग जाएगा। 25 के अप्रैल का पैसा निकलेगा, विड्रॉ होगा, 27 के मई में लग जाएगा। 24 के जून का पैसा निकलेगा, 27 के जून में लग जाएगा। अपने आप वो पैसा निकलता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल, वो पैसा निकालो लगाते हो। आपने 3 साल किया, चौथे साल ऑनवर्ड्स आपको 80C के लिए कभी इन्वेस्ट नहीं करना। लोग जिंदगी भर 80C के लिए इन्वेस्ट करते हैं, रिटायर होने आए उस साल भी कहते हैं सर 80C में सेविंग करना। व्हाट इज दिस? आपको सेविंग करना है करिए, बट टैक्स के क्या होता है, हम टैक्स के नाम पे जनरली गलत सेविंग कर देते हैं। कोई पॉलिसी खरीद लेते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, क्यों? टैक्स बचे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको 3 साल केवल ईएसएस खरीदना है, चौथे साल के ऑनवर्ड्स आपका 80C खत्म। आपको उसके बाद लाइफ में कभी नहीं सोचना, मैं तो कभी नहीं सोचता। मेरा SWP से जो पहला वाला है वो निकलता है और SIP में जाता है, निकलता है जाता है, निकलता है जाता है, काम खत्म। क्या मैं ये समझा पाया आपको SWP SIP का कंसेप्ट, या किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट है इस चीज में? हाउ टू मैनेज योर 80C बाय यूजिंग SWP एंड SIP, क्या ये क्लियर है? एनीवन हैविंग एनी डाउट ऑन दिस? क्लियर है ये? नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुआ। राधा मित्तल जी, मैं बता रहा हूं, आप एक म्यूचुअल फंड में, सपोज ये 2022 चल रहा है, 2022 के अप्रैल में आप अच्छे एक म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए। सपोज आपने 10,000 या 12,000 या 15,000 महीने कर दिया, पूरे एक साल करेंगे, आपका 1.5 लाख रुपए चला गया। अगले 2023 में भी यही करिए, 2024 में भी यही करिए, ठीक है? 22, 23, 24 करिए। अब 2025 में आपको एक पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। 2025 में अपने उसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास जाना है, वहां एक फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को कहते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। कौन सा पैसा निकलेगा? 2025 के 22, 23, 24 हो गया, 25 के अप्रैल में कौन सा पैसा निकलेगा? जो 22 के अप्रैल में गया था, और 25 के अप्रैल में वो पैसा अपने आप वो इन्वेस्ट हो गया। फिर 25 के मई में 22 के मई वाला पैसा निकलेगा, 22 के मई में जो पैसा गया था वो निकलेगा, क्योंकि उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं, और वो 25 के मई लग जाएगा। ऐसे साइकिल चलता जाएगा। आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना। अगर गवर्नमेंट लिमिट बढ़ा देती है 80C की, ऐसा हो सकता है लिमिट बढ़ा दे, तो 3 साल में आपका पैसा भी तो बढ़ गया होगा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 80C लाइफ में कभी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करना। क्या मैं समझा पाया आपको? हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है, तो इसको प्लीज आप लोग यूज करिएगा। कभी किसी ने बताया नहीं होगा, इसलिए आप लोग हर साल करते होंगे, परेशान होते होंगे, आई नो। तो प्लीज नेक्स्ट। नाउ अब बात आती है कि हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन कैसे रखना चाहिए। कैसे? आपकी जो कैपिटल है, सपोज राधा मित्तल जी ने या सुनील त्रिपाठी जी ने के पास मान लो 5 लाख रुपए है टोटल आज तक की सेविंग, वो कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? प्लीज नोट इट डाउन। इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल, इंश्योरेंस आर नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई जीवन आनंद, जीवन श्री और जब समथिंग समथिंग खरीद लेते हैं, दीज आर नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल, दीज आर वेस्टेज ऑफ मनी। आपको अपने जनरली कौन बेचता है? आपको जीवन आनंद जनरली आपका कोई मामा, चाचा, नाना, मामा का बेटा ऐसे कोई बेच देता है। तो अगर आपको उनकी समाज सेवा करनी है आप करिए, बट उसमें इन्वेस्ट करके ये कभी मत सोचिए कि यू हैव इन्वेस्टेड द मनी। नो, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल। नाउ हाउ टू इन्वेस्ट? प्लीज सपोज मेरी एज आज 40 इयर्स है, तो पहले 100 में से 40 माइनस करेंगे। 100 माइनस 40 क्या बचता है? 60। 60% शुड बी इनटू इक्विटी। ऑलवेज रिमेंबर, सपोज कोई एक्स है, उसकी एज है 60 इयर्स, तो 100 माइनस 60 कितना होगा? 40। 40% होना चाहिए इक्विटी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इक्विटी में कितना होना चाहिए? नाउ जो बचा हुआ पैसा है, that should be divided. Suppose this, see the graph,
फर्स्ट ग्राफ मैंने अपने एज के साथ बनाया है. My age is 40. 100 minus 40, that is 60%. The blue portion, इतना पैसा मेरा इक्विटी में होना चाहिए. और बाकी जो बच गया 40%, वो कैसे उसको हाफ करें, एग्जैक्ट हाफ करेंगे. हाफ करके 20, आपके एज के हिसाब से किसी का अगर 35 है तो 17.5, किसी का मान लो 30 एज है तो ब्लू पोर्शन उसका 70 हो जाएगा और बचा हुआ पोर्शन उसका 30 हो जाएगा. उसका हाफ करेंगे 15 आएगा. नाउ दैट हाफ पोर्शन of the remaining amount should be into gold. I'm repeating, should be into gold. जैसे मेरे केस में 20% should be into gold and remaining 20% should be into FRIs, fixed rate instruments, fixed rate interest instruments. उसी में FRIs में होना चाहिए. जनरली क्या होगा इंडिया में, किसी को शेयर मार्केट सीख लिया तो सारा का सारा पैसा शेयर में डाल दिया. किसी ने म्यूचुअल फंड में आया, सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया. किसी को गोल्ड अच्छा लगा, हर बार गोल्ड ही खरीदने लगता है. किसी को कुछ नहीं समझ में आया, एफडीज कर दिया या सारा पैसा पीपीएफ में डाल दिया. नो, दिस इज नॉट द रूल. रूल इज, प्लीज सपोज मोहिनी शर्मा जी कहती हैं कि माई एज इज 50 ईयर्स, तो मोहिनी शर्मा जी का 100 माइनस 50 बचा कितना, 50% इक्विटी में होना चाहिए. और बाकी 50% का हाफ किया 25% गोल्ड में and 25% फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट में. कैसे, वो बताऊंगा मैं आपको. नाउ जब मैं फिक्स रेट इंटरेस्ट की बात करता हूं 25%, तो उसमें आपका पीपीएफ भी होगा, पीएफ भी होगा, सुकन्या भी होगा, एफडी भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा. ये सब मिला के केवल 25% होना चाहिए. 25 मतलब आपके एज का हाफ, आपके एज का हाफ शुड बी इनटू दैट. एंड बाकी जो है आपके एज का हाफ शुड बी इनटू गोल्ड. और जब मैं गोल्ड की बात करता हूं तो दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ज्वेलरीज. योर ज्वेलरीज आर योर कंजम्पशन. अभी किसी ने हैंड रेज किया था. इफ somebody want to ask some any question, please. Yes, sir. I'm Nidhi. I have raised the hand. Yes, ma'am, please. Sir, is there any rule how you have decided the percentage? Yes, ma'am. Like 40%. Can I ask? It is very. It is not correct thing. Can I ask your age? Sir, I am 36. 36. So 100 minus 36 means it is 64. 64% should be into equity. 64% should be into equity, and 36%, remaining 36% divided into two parts. 18% into gold and 18% into fixed rate interest. Means PPF, PF, Sukanya, Kisan Vikas Patra, FDs. This should be 18%. Now, as your age will increase, suppose as your age will increase, your percentage of equity will decrease because 100 minus 8. जैसे जैसे होगा तो आपकी इक्विटी कम होती जाएगी. बिकॉज जब आप बूढ़े हो जाते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल के हो जाएंगे, तो आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटीज कम हो जाती है. उस समय आपको वेल्थ क्रिएट भी नहीं करना, उसको उस समय आपको फिक्स पैसा चाहिए होगा. आपके पास कुछ पैसा फिक्स इंटरेस्ट आ रहा है, सो दैट कि आपका घर का खर्चा चल रहा है. तो जैसे अभी आप क्या है, आप रिस्क ले सकते हैं. तो अभी जब हम कम एज में होते हैं, 24 साल के, 25 साल के, 30 साल के, तो 25 साल के हैं तो 75% शुड बी इनटू इक्विटी एंड 25% शुड बी इनटू गोल्ड एंड एफडी. ये गोल्ड एंड एफडी का क्यों है? गोल्ड जो होता है वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, और एफडी जो है वो आपका जो एफडी वगैरह में पैसे होते हैं वो आपका इमरजेंसीज में काम आते हैं. इसलिए तो इमरजेंसीज में काम आते हैं, इसलिए वो पोर्शन. जब आप एज कम होती है तो आपकी इमरजेंसीज फंड की कम रिक्वायरमेंट होती है. क्यों रिक्वायरमेंट होती है? सपोज कोई 25 साल का, 30 साल का बच्चा है, 30 साल का भी, तो उसमें जनरली उसके घर में बड़ा भाई होता है, मम्मी होती है, पापा होते हैं. तो अगर घर में कोई इमरजेंसी आती है तो दे हैंडल, घर में जनरली ऐसा होता है. लेकिन जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो यू आर द एल्डेस्ट पर्सन, आपको इमरजेंसीज को तो आपके इमरजेंसीज फंड बड़े हो जाते हैं. तो ये बड़ा फाइनेंस का, दिस हैज नॉट बीन क्रिएटेड बाय मी, दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स. रूल इज 100 minus your age should be into equity, and the funds equal to your age divided into two parts. Half should be into gold and half should be into fixed rate instruments, FRI. Now, okay, sir. One more thing. Yes, please. You said that gold and fixed instruments, fixed Yes. interest instruments, fears inflation. Fixed rate instruments means PPF, PF, FD, Sukanya. These are the fixed rate.
जैसे आपके Okay. स्कूल में कुछ पीएफ कट गया, आपने पीपीएफ अकाउंट खोला, उसमें डाल दिया, कुछ एफडीज में डाल दिया, कुछ सुकन्या में डाल दिया, तो वैसे सपोज आपके पास 5 लाख रुपए है, 1 लाख वहां पड़ा, 1 लाख वहां पड़ा, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, Yes. Okay. ओके, थैंक यू। तो ये तो हो गया ब्रॉड एलोकेशन ऑफ योर फंड, कैसे आपको करना। नाउ अब बात आती है कि सर गोल्ड में जो पैसा होगा वो कहाँ होगा। मैंने बताया वो आपका हमेशा और हमेशा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। जो एफआरआई में पैसा होगा वो कहाँ होगा। देखिए, यू आर बाउंड टू पुट सम मनी ऑन पीएफ, वो तो स्कूल वाले या ऑफिस वाले करेंगे। जो बचा हुआ पैसा है, अगर आपके पास बेटी है तो आप सुकन्या में डाल दीजिए, नहीं तो कुछ किसान विकास पत्र खरीद लीजिए, नहीं तो कुछ एफडी कर दीजिए, दैट इज इट। नाउ जो इक्विटी में पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट करना है प्लीज। अब मैंने आपको बताया था कि या तो यू कैन बाय शेयर्स और यू कैन बाय द म्यूचुअल फंड। वन इज यू आर बाइंग शेयर्स। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो प्लीज डिवाइड योर फंड ऑफ इक्विटी इनटू 10 पार्ट्स। सपोज मैंने कहा मेरी एज 40 है, तो मेरे पास 10 लाख रुपए था, 40 हटा दिया, बच गया 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए को मुझे 10 भाग में डिवाइड करना है। कितना कितना 10%। और इंडिया के 10 सेक्टर्स में पैसे लगाने हैं जो कि ग्रोइंग हो, जो आपको लगता है। प्लीज डू नॉट शेयर मार्केट। आई टेक अ लॉट ऑफ क्लासेस इन द इवनिंग। अगर आप किसी को करना होगा तो यू कैन कॉन्टेक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं टीचर्स के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर सम पेड क्लासेस आल्सो, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको करना है तो दैट इज योर थिंग। बट आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अपने फंड्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना। 10 बार मैं आपको लेमैन के लेवल बता रहा हूं, और आप देखना the way which I am telling you, if any one of you put it, आपका रिस्क होगा एफडी से कम। आई एम रिपीटिंग, योर रिस्क विल बी लेस देन एफडी एंड योर रिटर्न विल बी एट लीस्ट 3 times of एफडी। दिस इज माय प्रॉमिस ऑन रिकॉर्ड। दिस वीडियो विल बी ऑन यूट्यूब। यू कैन चेक मी एनी डे कि सर आपने गलत बोला था। मैं आपको बता रहा हूं, एनी 10 years के स्पैन में आप देख लेना, योर रिस्क विल बी लेस देन एफडी and your return will be at least 3 times of FD, at least 3 times of FD। क्या करना है, आपके पास जो पैसा है जो आपको इक्विटी में रखना है, आप इंडिया के अपने मन से 10 सेक्टर देखो जो आपको लगता है कि यार ये तो चलेंगे। जैसे एजुकेशन इंडिया में कभी खत्म नहीं होगा, ऑटोमोबाइल इंडिया में कभी खत्म नहीं होगा, फाइनेंस बैंक वगैरह रहेंगे, टेक्नोलॉजी रहेगी, जो सीमेंट है, स्टील है, ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है कि अगले 10 साल तक एग्जिस्ट करेंगे, उनकी वो कंपनियां देखो जो पिछले 20 साल से आप उसके प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हो। मैं आपको बताता हूं, सबको पता है। आप HUL ले लो, आपके घर में आता है। ITC देख लो, आपके घर में आता है। बाटा देख लो, टाटा देख लो, VIP देख लो, डाबर देख लो, ठीक है, मारुति देख लो, हीरो मोटोकॉर्प देख लो। ये वो प्रोडक्ट्स है जो आप अपने घर में यूज करते हो। समस्या क्या है, आपके दादाजी डाबर च्यवनप्राश खाते थे, आपके पापा डाबर च्यवनप्राश खाते थे, आप डाबर च्यवनप्राश खाते हो, आप अपने बच्चे को डाबर च्यवनप्राश खिलाते हो, लेकिन आपको डाबर कंपनी पे कॉन्फिडेंस नहीं। आप शेयर खरीद लेते हो यस बैंक का, फिर यस बैंक डूबेगा। आपको अकाउंट खुलवाना है, आप जाते हो SBI में, HDFC में, और शेयर खरीदते हो यस बैंक का। तो मैं क्या करूं उसमें। लेमैन के लैंग्वेज में आप वो सेक्टर्स देखो जो कि आप खुद 10 साल तक लगता है, 20 साल तक लगता है ये तो चलेगा। सबको पता है यार, बाहर निकलो 80% लोगों के हाथ में देखो VIP का सूटकेस होता है। ब्रांड कुछ भी हो, सूटकेस VIP कंपनी का हो। देखो बाटा देखो, जाके मतलब देखो 10 सेक्टर डिसाइड करो, उस 10 सेक्टर में 10 अपने 10 जो पैसा है 6 लाख 60 हजार, उसकी टॉप 2 कंपनियां। जैसे आप गए ऑटोमोबाइल में, देखो टॉप कंपनियां कौन कौन से, मारुति है, हीरो मोटोकॉर्प है, आइसर मोटर है, उसमें इक्वली लगा दो 2-3 कंपनियों में। आप चले गए FMCG में, HUL है, ITC है, डाबर है, ब्रिटानिया है, इक्वली लगा दो। आप चले गए IT में, वहां पे इन्फोसिस है, TCS है, पता चला कि विप्रो है, इक्वली लगा दो। आप चले गए बैंक में, वहां देखो कौन से ऐसे बैंक है जो 15-20 साल से चल रहे हैं, कौन से हैं, HDFC है, एक्सिस है, ICICI है, SBI है, इक्वली लगा दो, काम खत्म। मतलब आपके पास कितनी कंपनियां हो जाएंगी, 10 सेक्टर, और उस हर 10 सेक्टर की टॉप 2 या 3 कंपनियां, यानी 25 से 30 कंपनियों में आपको पैसा लगा देना। आपका पैसा, मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में इससे सेफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है।
This is Sankat Mochak. See the screen. Sankat Mochak. Or you will be having risk less than FD. You will be having return at least 3 times of FD. Your tax will be 1/3 of FD. टैक्स में जनरली हमारे 30% टैक्स लगता है अगर आपका इनकम आपकी अच्छी खासी है तो, लेकिन शेयर पे अर्निंग में केवल 10% टैक्स लगता है। तो 1/3 टैक्स देके 3 टाइम्स का अर्निंग करना, रिटर्न योर एफडी से कम, सॉरी रिस्क योर एफडी से कम, रिटर्न इज 3 टाइम्स ऑफ एफडी। इतना अच्छा है, लेकिन लोग करते जाते हैं, झरोदा में अकाउंट खोला, ग्रो में अकाउंट खोला, क्या खरीदा, XYZ केमिकल लिमिटेड। मैं पूछता हूँ क्या बनाती है, पता नहीं सर, किसी ने बताया था अच्छी कंपनी है। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मैं कहता हूं आप वो देखो ना जो आप अपने घर में यूज करते हो ना, देखो ना आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, उन प्रोडक्ट्स की कंपनी खरीद रहे, कुछ नहीं होता। अगर आप वर्लपूल के देख रहे हो कि आपके घर में वर्लपूल के वॉशिंग मशीन आपने भी खरीदा, पड़ोसी ने भी खरीदा, भाई भी खरीदा, खरीद लो आप भी, काम खत्म। लेकिन लोग नहीं करते। तो प्लीज जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, सिंस माय क्लास इज अबाउट एसेट एलोकेशन, आई एम रिपीटिंग, आपको इक्विटी में जो भी इन्वेस्ट करना है उसको 10 भाग में डिवाइड करेंगे। 10 सेक्टर्स देखेंगे इंडिया की इकोनॉमी के, उन 10 सेक्टर्स के जो टॉप 2 या 3 कंपनियां हैं उसमें इक्वली पैसा लगा, सेफ एकदम से। मैं बता रहा हूं 20 साल पहले मैंने ये शुरू किया था और 38-39 के एज में मैंने रिटायरमेंट ले ली। I was also a simple commerce teacher. मैं कोई वो नहीं था, मेरे पापा एक सिपाही आर्मी के, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन मैंने जिस दिन कमाया उस दिन से अपनी एसेट एलोकेशन को करेक्ट करना। नाउ दिस इज द इक्विटी का रूट। मैंने बताया सब कुछ आपको इक्विटी के बारे में नहीं पता, नहीं आपके पास टाइम ही नहीं है। आप म्यूचुअल फंड देखो, जो आपके पास इक्विटी का पैसा उसे 4 म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड देख लो। नहीं समझ में आता, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैंने वीडियो बना रखे हैं मैं कौन से म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ। 4 म्यूचुअल फंड, एक लार्ज कैप ले लो, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप या ईरेसेस। चारों में इक्वली SIP करते रहो करते रहो करते रहो, 15-20 साल तक करो। जो आपकी, आप सोच नहीं सकते कि आपका कितना पैसा बने, आपकी कल्पना के परे है। जो विच आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि कितना पैसा आप बन जाए। मैं अभी जाऊंगा एक स्लाइड पे, आप देख के परेशान हो जाएंगे कि ऐसा होता है। देखिएगा, नाउ सी दिस, इंडिया में अगर यू गो टू निफ्टी और सेंसेक्स, यू गो टू नैस्डैक और यू गो टू किसी भी अच्छे इंडेक्स को देख लो, मिनिमम 12% का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप में से कोई पिछले 10 साल से किसी अच्छे फंड में SIP कर रहा होगा, उसकी रिटर्न 12% होगी। मैं गारंटी बताता हूँ, इतना मार्केट गिरने के बाद भी। दिक्कत क्या है, हम 6 महीने SIP करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि यार ये तो बेकार है, छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। गलती वहां होती है। कोई भी आप में से कह दे कि नहीं सर मैं 10 साल से इस अच्छे फंड को SIP कर रही हूँ और मेरा 10-12% का रिटर्न है, मैं मान ही नहीं सकता। है कोई ऐसा ऑनलाइन? मैं किसी को नहीं जानता। एनी वन ऑफ यू, अगर आप में से कोई ऐसा है तो बताइए। 10 साल से अगर आप SIP कर रहे हैं अच्छे फंड में तो आपका मिनिमम 12% का रिटर्न। बिकॉज मुझे पता है इंडिया के, देखिए रिटर्न कैसे होता, रिटर्न इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन प्लस GDP। किसी का माइक ऑफ है, सॉरी ऑन है, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है अपना माइक ऑफ कर लेंगे। somebody's mic is on, my humble request, please mute yourself. Now रिटर्न जो होता है दैट इज इन्फ्लेशन प्लस GDP। इंडिया की इकोनॉमी का इन्फ्लेशन जनरली 5-6% पिछले 10-20 साल से है। GDP पिछले 10-20 साल से अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है 6-7% का है। 6% का इन्फ्लेशन, 6% का GDP, 6-6-12% की इंडिया इकोनॉमी ग्रो कर रही है। निफ्टी भी उसी रेट से ग्रो करेगी, सेंसेक्स भी उसी रेट से ग्रो करेगा और कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड उसी रेट से ग्रो करेगा ही करेगा। अगर आपने 10 साल इन्वेस्ट किया है, 10 साल SIP करके मुझे कोई बता दे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं नहीं जानता, आप बोलो कोई बोलता है हाँ सर मैं कर रही हूँ मेरा नहीं हुआ, मैं मान नहीं सकता। तो अब देखिए होता क्या, समझिए इस बात को, ये जो चार्ट आपके सामने इसको पढ़िए। ये वॉरेन बफेट ने जो किया है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, जो झुनझुनवाला ने किया मैं आपको बताने जा रहा हूं। लोग चाहते मैं आज पैसा लगाऊं और वो डबल हो जाए, नहीं, आपका पैसा मैं हर साल 3 गुना कर दूंगा, हर साल 3 गुना। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हैं? यस, एवरी ईयर 175% रिटर्न। Please see this chart, see the calculation. This is called as wonder of the world, 8th wonder of the world, compounding.
Suppose your money is increasing with the rate of 12%. What will happen? As per rule of 72, 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाए. You invest 1,000 rupees, it will become 2,000. Now 12 years में 4,000, 18 years में 8,000, 24 years में 16,000, 30 years में 32,000, and 36 years में 64,000. Why I have taken 36 years? Generally we start our job in the age of 24, 25 and we retire at the age of 60. तो जनरली ये 35-36 साल लोग काम करते हैं, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करता. 36 साल में आपका अगर आपने केवल पहले दिन 1,000 रुपए लगा दिए, 1,000 रुपए पहले दिन, तो वो कितना बनता है? वो बनता है 64,000 रुपीज. इंटरेस्ट कितना हुआ? 63,000 रुपीज. 1,000 रुपए प्रिंसिपल, 64,000 इज द अमाउंट. Subtract 64 minus 1,000, your interest amount will be 63,000. 63,000 को आप डिवाइड करिए 36 से, हर साल का इंटरेस्ट 1,750 रुपए से कुछ ज्यादा होता है. हर साल का इंटरेस्ट 36 से अगर आप डिवाइड करते हैं 1,750. आपका प्रिंसिपल कितना है? 1,000. इंटरेस्ट हर साल का कितना है? 1,750. कितने परसेंट हो गया? 175%. 200% के आसपास का इंटरेस्ट है ये. लेकिन ये तभी होगा, आपको हर साल 200% नहीं मिलेगा. जब आप कई सालों तक रखेंगे. झुनझुनवाला जी आज झुनझुनवाला जो बने हैं वो इस थ्योरी से बने. जो वॉरेन बफेट बने वो इस थ्योरी से बने हैं. उन्होंने अपना पैसा, आप उनसे देखिए, उनके पोर्टफोलियो को देखिए, क्या उनका पैसा हर साल डबल होता ही. लेकिन उनका पैसा पिछले 25 साल में, 30 साल में कंपाउंडिंग जो हुई है वो कंपाउंडिंग के बेनिफिट को आपको लेना. मैं आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूं. आप में से कोई भी, अभी एक लेडी थी 25-26 इयर्स की, सॉरी 30 इयर्स की. मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपके पास बच्चे का बर्थ हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जिस दिन आपके घर में एक बच्चे का बर्थ है उस दिन आप उसके नाम से 1,000 रुपए के SIP करना शुरू कीजिए. ओनली 1,000 रुपीज. उसको देखिए मत, हर महीने 1,000 रुपए. जब तक आपका बच्चा जॉब नहीं करता तब तक आप करिए, और जिस दिन आपका बच्चा जॉब करना शुरू कर देता है उस दिन से कहिए कि बेटा अब आप करना शुरू करें. आपको उम्मीद है कि जब वो रिटायर होगा तो उसे कितना पैसा मिलेगा? कोई अनुमान लगा सकता है? एनी वन ऑफ यू 25 लोग हैं, कोई भी बोलिए कि ये कितना पैसा हो जाएगा? जनरली 60 इयर्स में आपका बच्चा रिटायर हो जाएगा. 60 साल में कितना पैसा होगा? 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से केवल. बोलिए, है कोई बताने वाला? आपने इन्वेस्ट कितना किया 60 साल में? 60 साल में आपने इन्वेस्ट किया 7,20,000. बस आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पैसा 13 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा. मोर देन 13 करोड़ रुपए. मोर देन 13 करोड़ रुपीज आप इतनी एसेट अपने बच्चे को दे जाएंगे, वो कितना हो जाएगा? लेकिन करते ही नहीं हम तो पता नहीं, हम तो कोई XYZ प्लान जाके खरीद लेते हैं जो हमारा वो बता देता है बैंक वाला, और ठीक है. तो दिस इज द एसेट एलोकेशन यू शुड बी डूइंग. आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन एंड आंसर. मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूं. प्लीज यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ. अगर आप देखिए, पेड़, बेल और झाड़ी, इस थ्योरी को समझिए. पेड़ वो होता है जिसके अंदर ताकत होती है और वो खुद अपने बल पे ऊपर चला जाता है. बेल वो होता है जिसको समझ में आता है कि जी मेरे तनवे में ताकत नहीं है, वो किसी का सपोर्ट लेता है और ऊपर चला जाता है. कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर गया दोनों. पेड़ है, मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, मेरे बच्चों को अकाउंट पढ़ाने में पढ़ा दूंगा. मेरा बच्चा फिजिक्स ले लेता है, मुझे नहीं आता, मैं उसकी को हेल्प कर लूंगा. दोनों ठीक है. मेरा बच्चा ऊपर पहुंच गया ना, मैंने पढ़ा दिया तो भी पहुंच गया, और वो किसी की हेल्प ले लिया तो भी पहुंच गया. कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत तब होती है कि मुझे फिजिक्स आती नहीं और मैं किसी को ट्यूशन भेजूंगा नहीं, मैं कहूंगा ना ये तो बेकार है, तो वो बन जाते हैं झाड़ी. मींस मेरे तनों में ताकत नहीं है ऊपर जाने की और मैं किसी की हेल्प भी नहीं लूंगा. तो झाड़ियों का क्या होता है आपने देखा होगा, एक दिन म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और काट के चले जाते हैं. तो प्लीज, पेड़ है बहुत अच्छी बात है, नहीं बेल है, प्लीज टेक हेल्प of one expert of any area. I'm not talking about finance, I'm talking about medicine, I'm talking about career, I'm talking about everything in your life. Please take help. And if you cannot do these two things, then आप झाड़ी बन जाएंगे, और जब झाड़ी बन जाते हैं तो लाइफ हमेशा खराब हो जाती है. Thank you very much for joining this session. I will be taking question answer. मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस भी ग्रुप से आपने इसको ज्वाइन किया है, फीडबैक जरूर डालेंगे. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं अभी लूंगा.
और अगर आप फीडबैक दे देंगे सेशन के विद इन सेशन तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. एनी वन ऑफ यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर पेरेंट्स related to these slides or asset allocation, anything you have in your mind. Please. Any one of you. Sir. Yes, please, Vikas Mehra ji. Good evening, sir. It was Good the evening. interactive session, and we have gained. Hello, am I audible, sir? Yes, yes, you are audible, please. We have gained a lot of knowledge regarding mutual funds, regarding asset allocation and portfolio management. Thank you, And thank it you will very be much. quite beneficiary for me to teach FMM students. Thank Yes, you. sir, it is exactly beneficiary meeting. थैंक यू मोनी शर्मा जी. मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरे कुछ शेयर मार्केट के ग्रुप्स हैं, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करें तो मेरे कुछ सेशंस होते रहते हैं. जब भी आप लोग ज्वाइन करें मैं लिंक्स भेजता रहूंगा. अगर आप में से कोई नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिएगा कि आई वांट टू ज्वाइन योर फ्यू सेशंस. आप Sir, it was really an eye-opening for me. Many new things I have learned. So thanks for giving such good lecture. and you all will get your certificate by Sunday evening on your mail. I'm repeating, you all will Can get I your take certificate. the PPT? Yes, ma'am. Nidhi, ma'am. Yes, sir. It was very good session. I have learned a lot. Thank you. Can we get the PPT? Yes, you can get the PPT. I will send it by mail only. I will be sending you Okay, thank you so much. email. On email, there will be a link of a WhatsApp group. If you want to continue the sessions, you can join. Your certificates will be there, and I will send you the PPT also. Sir, very good session. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much, Nutan ma'am. Very informative, and I am very impressed to now I can manage my asset allocation. I will Thank you. well understood it. Thank you. Thank you very much. Sir, I Vikas, want to join your share market channels. How can I join your sessions? I will send when I will send you the mail by Okay. Sunday with your certificate. There will be a link of a WhatsApp group. Join that Okay. WhatsApp group, Okay. and you will get the link of all future sessions on that WhatsApp group. Okay. Thank you, sir. So nice of you. Sir, I have one query. Is investing in agricultural land profitable? Sir, if you can control that agriculture, and if you can control agriculture and for service class people, it is very difficult to control that. So if you have a control, that means suppose you are living in a city and there is agriculture and you can see every day, you can manage it, then it's okay. Otherwise, do not buy agriculture land. Okay, thank you, sir. Anything Good. else? Sir. Yes, ma'am. Sir, it is very good session. Sir, I am one query. ये अगर suppose करो मेरी एज भी 44 है, लेकिन मैंने आज तक कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की. कोई बात नहीं मैम. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ किसी के, मैंने बताया ना 15 years is more than enough. नेक्स्ट अभी 44 है तो अभी तो आपके पास पूरे 50 साल पड़े हैं. हाँ, देन बल्कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट. आपके पास जो सेविंग है, सेविंग तो होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सेविंग कुछ तो होगा, 10-20 हजार 50 हजार कुछ तो होगा. उसको डाइवर्सिफाई करिए. 100 minus 44 that means 56% आपको इक्विटी में डालना है. It means अच्छे म्यूचुअल फंड खरीदिए. नहीं समझ में आता शेयर्स खरीदिए. नहीं समझ में आता सुनील त्रिपाठी को फोन कीजिए. आई विल गाइड यू, डोंट वरी. Okay, sir. Thank you. Sir, one more. आपका YouTube, what name it is? Dr. Tripathi, I will send the link on the mail also. I will send Okay, you the okay. link of the YouTube channel on the mail. I Otherwise, will, sir, one good news. I will recommend my students to follow this YouTube. thank you very much, sir. Many of the students are already Rest assured. following. I have created a link, and जो मैंने आप लोग को आज लिंक भेजा था मेल का, उसमें भी मेरे YouTube चैनल का लिंक होगा. Okay. ठीक है. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank Hello, you. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank Hello, you. sir. Thank you, sir. Yes, yes. Anyone? Thank you, sir. Deepika Batra Thanks a ji, lot, please. sir. Deepika Batra ji, please. Sir, I want to ask one thing. Sir, Yes, please. is it beneficial to invest in virtual property? Like Ma'am, nowadays the trend is going on, na? Like Bitcoin. मत जाइए इन सब चीजों में मैम, मत जाइए. हम लोग देखिए सर्विस क्लास के लोग हैं. सिंपल सा बात है, मैं आपको बता रहा हूँ. थोड़े से गोल्ड खरीद लीजिए, थोड़ा एफडी वगैरह कर लीजिए एज पर द रिक्वायरमेंट जो मैंने आप लोग को बताया, और अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए. अगर नहीं समझ में आता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदिए. थोड़ा थोड़ा करके
देखिए टीसीएस कहीं नहीं जाने वाला, रिलायंस कहीं नहीं जाने वाला, डाबर कहीं नहीं जाने वाला, वीआईपी कहीं नहीं जाने वाला, बाटा कहीं नहीं जाने वाला, एचयूएल कहीं नहीं जाने वाला, आईटीसी कहीं नहीं जाने वाला, बजाज फाइनेंस कहीं नहीं जाने वाला, आईसीआईसीआई बैंक कहीं नहीं जाने वाला, एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं जाने वाला। बस जितने मैंने अभी नाम ले लिए ना, इनके शेयर हर साल दो चार खरीदते रहिए अगले 10 साल तक। आप सोच नहीं पाएंगे कि आपने क्या बना लिया जीवन में, क्या कितना आपने एसेट क्रिएट कर लिया, आप कभी सोच भी नहीं पाए। Excuse me, sir. Good evening. Yes, Thank you, sir. Sir, at what time we can call you? yes ma'am, please. Sir, at what time we can call you? You can call me any day between 7 p.m. to 8 p.m. Okay, thank you very 7 much, sir. p.m. to 8 p.m. I have given only for the calls. Any one of you, if you want to call me, you can call me between 7 p.m. to 8 p.m. Thank Okay? you, sir. Thanks a lot. Thank you very much. Thank